چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکی ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور پہلی خبر آج پنجاب سے آ رہی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت نے پچھلے 10 مہینوں میں نوجوانوں کو 25,886 نوکریاں دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ صحت اور خاندانی بہبود میں 271 ماہر ڈاکٹروں، 90 لیب ٹیکنیشینز اور 17 مددگاروں کی تقرری نامت دینے کے موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مقام پر ایسے متعدد واقعات دیکھنے کو ملے ہیں جن میں بہت سے نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں نوکریاں ملی ہیں، جو کہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ ناظرین گرامی ادھر کولار سے خبر آ رہی ہے کہ سدھا رامیہ کے یہاں کے حلقے سے آئندہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کرنے کے بعد سے، یعنی امیدوار بننے کے اعلان کے بعد سے ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ایسے میں یہاں پر مختلف قسم کے لیڈران آ رہے ہیں۔ اس درمیان میں جے ڈی ایس سے جڑے ہوئے جناب احمد علی بیگ صاحب بھی کل یہاں پر ایک درگاہ کمیٹی کی جانب سے اجتماعی شادیوں میں شریک ہونے کے لیے پہنچے تھے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت قطب غوری کمیٹی کی جانب سے یہاں پر اجتماعی شادیوں کا اہتمام ہوا، جس میں 18 جوڑوں کو جو ہے ازدواجی بندھن میں باندھا گیا ہے، اور یہ سارے کے سارے خرچ و اخراجات حضرت قطب غوری کی جانب سے۔ اس موقع پر یہاں پر مختلف لیڈران جہاں شریک ہوئے، وہیں پر جو ہے جے ڈی ایس سے جڑے ہوئے جناب احمد علی بیگ نے بھی اس موقع پر جو ہے شرکت کی تھی اور یہاں لوگوں سے جو ہے گفتگو بھی کرنے کی کوشش کی۔ اور اسی درمیان میں انہوں نے ایک سیاسی بیان بھی جاری کیا ہے اور کہا کہ کولار کا اس وقت حلقہ جو ہے وہ تمام سیاسی پارٹیاں یہاں پر اپنی قسمت آزمانی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں کانگریس کی جانب سے جو ہے سدھا رامیہ اسبق جو ہے اپنے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کولار سے لڑنا چاہتے ہیں، وہاں کے امیدوار بنیں گے، اور یہ سبب ہائی کمان پر ہے کانگریس کے۔ بہرکیف اس موقع پر میڈیا کے نامہ نگاروں سے اپنے دفتر میں گفتگو کرتے ہوئے احمد علی بیگ نے کہا کہ جو ہے سدھا رامیہ کو اس اعلان سے پہلے مقامی سطح پر ایک سروے کر لینا چاہیے تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی اس موقع پر آئیے احمد علی بیگ صاحب نے گفتگو کی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کی زبانی کی جے ڈی ایس کس قدر یہاں مضبوط ہے اور وہ کس کے سپورٹ پہ آ رہے ہیں۔ سدھا رامیہ صاحب کسی اور 2-3 جگہ سے کھڑ سکتے ہیں، کسی دوسرے شیتر سے کھڑ کر وہ جیت کر عوام آ کر پہلے کولار کی خدمت کریں، انشاءاللہ اس کے بعد ساری عوام ایک طرف ہو کو ان کو ووٹ ڈالے گی، کیونکہ کانگریس آج تک کولار کے اندر جیتی نہیں ہے۔ چاہے نصیر صاحب آئے ہو، چاہے ضمیر صاحب آئے تھے، یہ تھے، کانگریس کا ایک بلبل جو تھا، تو ہمیں چاہتے ہیں کہ اس مرتبہ اگر کانگریس کے اندر مسلمان کینڈیڈیٹ کو ڈالتے تو بے شک اس مرتبہ مسلمان 100% آنے کے چانسز تھے، جو آج اس مرتبہ کوئی پارٹی والا نے مسلمان کو کینڈیڈیٹ نہیں ڈالا۔ تو کیا رہے گا سر میسج کولار کے بعد؟ دیکھ کولار کے لیے ایک ہی میسج ہے، آپ سوچئے، دیکھیں ہر ایک انسان کا اس کا ووٹ کا حق ہوتا ہے، چاہے وہ کانگریس کو ڈالے چاہے جے ڈی ایس کو ڈالے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ دیکھیں ہمیں 2 جنوں کو بھی عزت کرنا ہے، اگر باپ بھی آ گیا بیٹا بھی آ گیا تو داد بھی ہمارے ہیں، ہونڈ بھی ہمارے ہیں۔ سدھا رامیہ صاحب ہمیں ان کی عزت کرتے ہیں، وہ سی ایم تھے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بغیر سروے کرے آ کر کھڑے ہو کر، اگر اللہ نہ کرے وہ ہار گئے تو ہمارے لیے بھی یہ افسوس کی بات ہوگی کہ ایک سی ایم اس جگہ سے ہارے۔ تو بہتر رائے یہ ہے کہ سدھا رامیہ صاحب کولار کو سروے کرے، گلی گلی سروے کرے، لوگوں کی رائے مشورہ لے، لیڈروں کی بات سن کر نہیں آ کر کھڑے ہو گئے کہ لیڈر کہہ رہے ہیں کہ آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ لیڈروں کی باتوں کو چھوڑ کر سدھا رامیہ صاحب کو گلی گلی جانا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، اگر ان کو لگتا ہے میں کولار میں جیت سکتا ہوں تو بے شک کھڑ سکتے ہیں، وہ ان کا اختیار ہے۔ سر دونوں کا ایجنڈا فرقہ پرست طاقتوں کو ختم کرنا ہے، اس سلسلے میں کوئی دونوں کی سے آپسی بات چیت کچھ ہو سکتی ہے، کیونکہ مائنورٹی ووٹ ڈیوائیڈ ہونے کے امکانات ہیں؟ تو یہی تو کہتا ہوں، مسلمان دیکھیے جب مسلمان یہاں پر کھڑتا ہے، دوسرے قوم والے سمجھ مارا کھڑے ہو کر مسلمان کو
एमएलए नहीं बना सकते। जैसे नसीर साहब खड़े थे, अगर मुसलमान पूरा एक हुआ तो गैर हजरात भी एक होकर उनको जिताना चाहिए था कांग्रेस को, लेकिन उस वक्त अपनी अपनी कास्ट के हिसाब से देखा गया। जब वो दूसरी कौमों को मुसलमानों की ज़रूरत पड़ती है तो चाहे वो एमपी हो, मिनिस्टर हो, मोदी हो, अमित शाह हो, कोई भी हो, जब हमारे वोटों की ज़रूरत पड़ती आकर कन्फ्यूजन पैदा करके अपना वोट लेके ज़ाही कर देते हैं। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि जब तक कोलार की हकीकत हिंदू मुसलमान एक नहीं होता, कोलार के अंदर कोई भी एमएलए नहीं जीतेगा। ये मेरा चैलेंज है। हिंदू को भी मुसलमान का वोट, दोनों का वोट, माइनॉरिटी वोट भी समझ में आ रहा है, गोड़ा हजरात का भी वोट भी या कुरबुर हजरात का वोट भी, ये जितनी भी दलित हजरात हैं, ये सारों का वोट मिलकर ही कोलार में एक एमएलए जीत सकता है। ये नहीं कि मुसलमान आ गया मुसलमान जीत दे, क्योंकि नसीर साहब हमारे पास खड़े हुए थे, सारे मुसलमान एक तरफा वोट डाला था। एक तरफा वोट डालने के बाद गैर कौम हजरात ने उनको साथ नहीं दिया। अगर साथ देते तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 मरतबा एमएलए हो सकते थे। शुक्रगुजार हूँ, आज खुतब गोरी बाबा कमेटी की तरफ से मुझे बुलाया गया। ख़ास तौर से यहाँ पर जो 14 और 18 शादियों का इंतज़ाम किया है, ये किसी पॉलिटिक्स वालों ने नहीं किया, मतलब कि सिर्फ ये कमेटी वालों ने इंतज़ाम किया है। जो सियासी लोग भी जुड़े हुए, यहाँ पर हमायदीनी शहर भी जुड़े हुए हैं। बड़ी खुशनुदी की बात है कि दरगाह कमेटी ने मिलकर ये सारा इंतज़ाम किया। इंशाअल्लाह हमें आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हमारे सरफ़े ख़ास से और अपने माल से हम कमेटी को ताउन करेंगे और कमेटी के साथ जुड़कर हम भी इंशाअल्लाह 100 जोड़े से 200 जोड़े तक निकाह करने की कोशिश करेंगे। बेंगलुरु में हो या कोलार में हो, ऐसे बहुत से साहिब हैसियत थे, लेकिन कोई आगे बढ़कर क्यों नहीं आता? देखिए भाई, जितने भी साहिब हैसियत हैं उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने उनको दौलत दिया है। क्योंकि अल्लाह ने कहा इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई बुरी बातों से, लेकिन दौलत बांटने से इंसान की दौलत घटती नहीं, अल्लाह ताला उस दौलत के अंदर इजाफा फरमाता है। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत ख़त्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। इधर नाज़रीन गिरामी, मोदी हुकूमत के ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को ख़त लिखकर कालजे में अपने नुमाइंदे को जगह देने का मशवरा पेश किए जाने की कांग्रेस ने सख्त मजम्मत की है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सरजेवाला ने मंगल के रोज़ इल्ज़ाम आयद किया कि PM मोदी मरकज़ी वज़ीर क़ानून और दीगर आईनी अफसरान क़स्दन एक मनसूबाबंद साजिश के तहत अदलिया की सालमियत और आज़ादी पर हमला कर रहे हैं। सरजेवाला ने कहा कि इनका वाज़ेह मकसद अदलिया पर कब्ज़ा करना है ताकि हुकूमत को अदालत के ज़रिए उनके मनमाने कामों के लिए जवाबदाह नहीं ठहराया जा सके। इधर सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की सहारनपुर में साबिक़ MLC हाजी इकबाल के खिलाफ इंतज़ामिया ने एक बार फिर क़र्क़ी की कार्रवाई की है। इंतज़ामिया ने हाजी इकबाल की भगत सिंह कॉलोनी में वाक़ जायदाद को ख़र्क किया। थाना मिर्ज़ापुर पुलिस ने एक हफ़्ते के अंदर हाजी इकबाल के ऊपर लगातार दूसरी मरतबा एक क़र्क़ी की कार्रवाई की है। हाजी इकबाल पर एक कार्रवाई इज्तिमाई इसमदरी की शिकायत के बाद की जा रही है। इन पर गैंगस्टर कानून का भी इतलाक़ किया गया है। नाज़िर मगरबी बंगाल हुकूमत ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को एक ख़त लिखा है, जिसमें मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द PM रिहाइश मनसूबे के तहत मुख्तसर रकम जारी की जाए। ख़त में कहा गया कि रियासत में 11.5 लाख घरों को 31 मार्च तक पूरा किया जाना है। अगर मरकज़ से रकम मिलने में ताख़िर होती है तो वक्त पर तामीर का अमल अंजाम नहीं पा सकेगा। रियासत के एक अफसर ने बताया कि पीर के रोज़े ख़त भेजा गया है। उधर नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान की कराची में मुक़ीम दाऊद इब्राहिम कास्कर ने एक पठान खातून से शादी कर ली। इस बात की तय उनकी दूसरी शादी है। दाऊद की पहली बीवी का नाम महजबीन अली शाह पारकर है। जानकारी ने हसीना पारकर के बेटे और अंडरवर्ल्ड डॉन के भांजे अली शाह ने NIA को दी है। उन्होंने कहा कि इनकी पहली बीवी को दाऊद की दूसरी शादी के बारे में मालूम है और वो अलग ऐप के ज़रिए दोनों के राब्ते में रहती है। दावा NIA ने दाऊद NCP लीडर नवाब मलिक और पारकर समेत दीगर के खिलाफ दर्ज एक दहशतगर्दाना मामले में दाखिल चार्जशीट में किया। इससे पहले पारकर ने दावा किया था कि वो डॉन के राब्ते में नहीं थे। इधर नाज़रीन गिरामी, गुजरात हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गोश्त की दुकानों और खुले में फ़रोख्त होने वाले गोश्त के बारे में लापरवाह रवैये पर रियासती हुकूमत की सरजरिश की है। अदालत ने कानूनी खिदमात अथॉरिटियों को लीगल सर्विस अथॉरिटी से कहा कि वह ऐसी दुकानों का सर्वे करके रिपोर्ट पेश करें। इधर बांग्लादेश की दारकूमत ढाका से तकरीबन 101 किलोमीटर जुनूब पे वाक़ ज़िला शरीअतपुर में मंगल की अलस सुबह एम्बुलेंस और ट्रक के टकरा जाने से 6 अफराद की मौत वाक़ होने की खबर है। फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद सलीम मियाँ ने बताया कि हादिसा मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:20 पर उस वक्त पेश आया जब ढाका की जानिब जाने वाली एम्बुलेंस घने कोहरे की वजह से CNG ट्रक से टकरा गई थी। नाज़रीन गिरामी, इधर कौमी राजधानी दिल्ली में पुलिस की जानिब से 2 मुबैना दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश की ज़िला अयोध्या में हिफाजती इंतजामात में इजाफा किया गया। पुलिस का मानना है कि दोनों
जिन लोगों को धर लिया गया उनको दाएं बाजुओं के हिंदू लीडरान पर हदफ बनाकर हमला करने का काम सौंपा गया था। सीओ शैलेंद्र गौतम ने इस सिलसिले में कहा कि अलर्ट जारी कर दिया है, तमाम गाड़ियों की गहराई से जांच की जाए। उन्होंने भी कहा कि शहर के हसास चौराहों पर चेकिंग की जाए। अयोध्या में दाखिल होने वाले लोगों से शहरियत से मुतालिक शनाख्ती कार्ड और आधार कार्ड भी मांगा जा रहा है। इधर उत्तराखंड की जोशीमठ के गर्क होने का बहरान वक्त के साथ मजीद संगीन होता जा रहा है। मुतादिद मकानात और 2 होटलों के बाद अब एक पूरी कॉलोनी उसकी लपेट में आ चुकी है, जिसके बाद उसे गिराने का फैसला किया गया है। जोशीमठ की जेपी कॉलोनी के मुआयने के बाद पता चला कि बुरी तरह ख़राब हो चुकी है, उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। कॉलोनी में 30 से ज़ायद मकानात हैं जिनमें बड़ी दरारें आ गई हैं, इनमें इजाफा हो रहा है। ख़तरे के पेश नज़र कॉलोनी की तबाहशुदा इमारतों को गिराने की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। नाज़रीन, इधर साल 2023 की शुरुआत आलमी सतह पर टेक मुलाजिमीन के लिए काफ़ी ख़राब हुई। 91 कंपनियों ने इस महीने के पहले 15 दिनों में ही 24,000 से ज़्यादा टेक मुलाजिमीन को निकाल दिया है। आने वाले दिनों में हालात मज़ीद बदतर होने के अंदेशे जाहिर किए जाए। मुलाजिमीन की छंटनी पर नज़र रखने वाली वेबसाइट layoffice.fyi.cryptolending-exchange crypto.com के मुताबिक अमेजन, सेल्सफोर्स, काइनबेस जैसी कंपनियों के 24,151 मुलाजिमीन बेरोज़गार हो गए। इन कंपनियों ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया था कि कंपनी माशी बहरान वाले हालात के दरमियान अपने आलमी मुलाजिमीन की तादाद में तकरीबन 20% की कमी करेगी। इधर अमेरिका में हिंद नज़ाद लीडर हरमीत ढलन ने रिपब्लिकन पार्टी पर तफरीक आमीज़ रवैया इख्तियार करने का शदीद इल्ज़ाम आयद किया है। मशहूर वकील हरमीत रिपब्लिकन नेशनल कमेटी की चेयरवुमन अहदी की रेस में शामिल हैं, लेकिन इस दरमियान उन्होंने बयान दिया कि सिख मजहब में उनकी अक़ीदत के सबब तफरीक का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सिख होने की वजह से रिपब्लिकन लीडरों के ज़रिए उन पर कट्टर पसंदाना हमले किए जा रहे हैं। हालांकि साथ ही उन्होंने कहा कि वो ऐसे हमलों से खौफज़दा होने वाली नहीं और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इधर सोमालिया फ़ौज ने दहशतगर्द तंजीम अल-शबाब के कब्ज़े में मौजूद हरकार दहरा नामी शहरी को 12 साल बाद आज़ाद करवा लिया है। सोमाली वज़ीर दिफ़ा अब्दुल क़ादिर महमूद ने इस बात का इज़हार किया और बराए के कालचात जल्द धेर नामी शहरों को भी दहशतगर्दों से पाक करने का दावा किया है। इधर नाइजीरिया में एक फ़िज़ाई हमले में बोको हराम तंजीम के 2 नामनिहाद आला अहदेदारों समेत कम अज़ कम 14 अफराद के हलाक होने की बातें सामने आ रही। कौमी प्रेस की खबर के मुताबिक नाइजर सूबे में बोको हराम तंजीम के खिलाफ फ़िज़ाई ऑपरेशन किया गया। इस कार्रवाई में कम अज़ कम 40 अफराद हलाक हुए, जिनमें तंजीम के नामनिहाद सरगना भी शामिल थे, जिनकी रेड बुलेटिन से तलाश की जा रही थी। नाज़रीन, में अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में तूफ़ान और शदीद बारिशों के बायस अमवात की तादाद 19 हो गई, तो 80 लाख अफराद की रिहाइश पजीर होने वाले इलाके के लिए सैलाब का खतरा बरकरार है। कैलिफोर्निया जियोलॉजिकल सर्वे के बयान में कहा गया कि खलीजी इलाका समेत रियासत में जहाँ तकरीबन 80 लाख अफराद रिहाइश पजीर है, वहाँ सैलाब का खतरा बदस्तूर बरकरार है। इलाके के मौसमी वाक़यात पर गहरी नज़र रखी जा रही है। नाज़रीन, इधर कर्नाटका उर्दू चिल्ड्रंस अकेडमी की जानिब से शिकारीपुर में मोटिवेशनल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। जी हाँ, बरोज़ मंगल 17 जनवरी 2023 को कर्नाटका उर्दू चिल्ड्रंस अकेडमी ने संस्कृति भवन शिकारीपुर में एक मोटिवेशनल प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम की सदारत सैयद हम्माद अनरुल्ला साहब निगरान जुबैदा एजुकेशन ग्रुप शिकारीपुर ने की है। मेहमानों की हैसियत से कौमी शायर डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी, मौलाना आज़ाद मॉडल स्कूल की मीर मौलिमा मोहतरमा ममता साली और गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब नागराज KM, जनाब सोमन्ना BRC, जनाब मालतेश श्रीनिवास, जनाब खिजर बेग, कन्नड़ा सहाफ़ती तंजीम की ज़िली सर जनाब हुच्चा रायप्पा वगैरह ने शिरकत की थी। डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी ने कहा कि तालीम ही से ज़िंदगी का लुत्फ़ कायम है। तालीम जहाँ इंसान को कामयाबी से हमकिनार करती है, वहीं ज़िंदगी का लुत्फ़ लेने का सलीक़ा भी सिखाती है और हर तरह की ज़िम्मेदारी के तहत हसास बनाए। उन्होंने तलबा और तालिबात को मुखातब करके कहा कि तालीम और मेहनत को अपना दोस्त बना लीजिए, इसी में कामयाबी का राज मुसमा है। उन्होंने ये भी कहा कि अदब अतफ़ाल और कर्नाटका उर्दू चिल्ड्रंस अकेडमी के मिशन का एक रुख तालीम को आम करना और बच्चों में तालीमी उमंग पैदा करना भी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमीन मुदस्सिर साहब बहुत ही काबिल मोटिवेटर हैं, उनकी तकरीर और तरबियत से यकीनन बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन गिरामी, इस प्रोग्राम का इफ्तिताह डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने किया था और अपनी इफ्तिताई तकरीब में ही वो इन तमाम चीज़ों का इज़हार कर रहे थे। इस मौके पर मौजूद तमाम मेहमानान ने अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया और बच्चों को अलग अलग उन्वानात पर मोटिवेट करने की कोशिश हुई। नाज़रीन गिरामी, इधर लिंगसूर यानी ज़िला रायचूर से खबर यह आ रही है कि सरकारी उर्दू उस्तानिया मदरसा गोलीपुर में यहाँ पर उर्दू कलिका चेतरी के कलिका मेला यानी इक्तिसाबी मेले का इनेकाद किया गया था 17 जनवरी को। इस मौके पर मुख्तलिफ़ स्कूल के तलबा ने इसमें हिस्सा लिया था और बहुत ही अच्छे अंदाज में उर्दू को किस तरह सीखा जाए, उर्दू को किस तरह लिखा जाएगा, उसकी किस तरह से लिखाई आती है, ख़त्ताती होती है, इसको
اسکول کے اور سرکاری اسکول کے بچوں نے بہترین انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی اور یہاں پر سمجھانے کی بھی کوشش کی۔ مختلف اسکولوں کے ذمہ دار اساتذہ کرام اور الگ الگ شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بچوں کی اس خطاطی کو اور ان کی محنت کو سراہا اور الگ الگ انداز میں کس طرح سمجھانے کی کوشش ہے، اور بچوں بھی بہت ہی محنتوں کے ساتھ ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرکاری اردو استوانیہ مدرسہ گولی پور تعلقہ لنگسور میں اس میلے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے میرا نام ہے آج میں آپ کو جانداروں کے جسم کی مختلف یعنی ڈفرینٹ لیولز آف لیونگ آرگنزمس آج میں آپ کے سامنے خلیہ اور میکانزم کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ خلیہ یعنی سیل، کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام جانور خلیوں سے بنے ہوئے ہیں اور لیونگ تھنگس آر میڈ اپ آف سیل۔ ان 1665 روبرٹ ہاکس کا سیل کا اسے مائکروسکوپ خلیہ کسے کہتے ہیں؟ واٹ از سیل؟ سیل از اے فنڈامنٹل اسٹرکچرل اینڈ فنکشن میڈ آف دا لیونگ آرگنزمس۔ خلیہ انسان کی بنیادی ساختی اور کھیل بتائی ہے۔ خلیہ ایک بیرنگ کی چیزی بنا سے بنا ہوا ہے، اس کے اطراف سیل ممبران ہوتی ہے، درمیان میں مرکزہ ہوتا ہے، مرکزے کے درمیان کا سیال یہ کہلاتا ہے۔ جس طرح گھر کی تعمیری کے لیے اینٹ ہے بقایا ہے، اسی طرح خلیہ انسان سب کے ہیں بقایا کہلاتی ہے۔ سب سے لمبا خلیہ اصلی خلیہ حیوانی خلیہ ہے جو تقریباً 90 سینٹی میٹر کا ہے۔ خلیوں کا وہ گروہ جو ایک ہی ساخت رکھتا ہے اور ایک ہی طرح کے کام کرتا ہے جو نسیج کہلاتا ہے۔ نسیج ٹشوز، نسیج خلیوں کا وہ گروہ ہے جن کے وہ جامد ایک اور افعال خاص ہوتے ہیں۔ مختلف نسیجوں کی جماعت جب مل جل کر کوئی خاص فعال انجام دیتے ہیں اسے عضو کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کے بعد خاص بات اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات